Hi guys, good morning everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Morning. So guys, again, news on FMCG and auto again in the newspapers now. Some bad news about the automobile that the car makers are giving up discounts. Acha, now today, sales figures will come out for all the companies. Now it is your duty to make a presentation on what is the data or what is the outcome of the data. The monthly datas are out, so every month you have to do this to when you say that you are following an auto sector. So क्या हुआ है, कौन सा स्टॉक, कौन से कंपनी के स्टॉक सेल्स बढ़े हैं, कम हुए हैं, कौन से सेगमेंट में कम हुए हैं, एसयूवीज बढ़े हैं या एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं या टू व्हीलर्स बढ़े हैं, थ्री व्हीलर्स बढ़े, टू व्हीलर्स में भी मोटरसाइकिल्स बढ़े हैं या स्कूटर्स बढ़े हैं. ऑल दोस थिंग एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट पंचिंग. आज के दिन में सब के सब डेटा आ जाते हैं एट द एंड. सो हमारा एज एन एनालिस्ट आज फर्स्ट डे को, फिर फर्स्ट डे कुछ भी हो, वो संडे हो तो भी कोई प्रॉब्लम, तो भी यू हैव टू वर्क ऑन संडे एज वेल. सो बी प्रिपेयर्ड कि आज जिनको जो लोग ने किया है, हर्ष यू हैव डन इट लास्ट टाइम आल्सो. नाउ अगेन देयर इज अ डेटा व्हिच हैज कम नाउ. तो दिस इज अबाउट अपडेटिंग योरसेल्फ कि सीवीज में ना कुछ तो डालने के लिए चाहिए होता है हर बार. Yes, sir. If you don't do it on a regular basis, no one is gonna consider you for a role. See, now we are applying for a role where you have experience. See, those मेरे जो भी references है, it is only comes with experience. We are not going into fresher roles. Equity research में fresher roles नहीं मिलते. तो जितने भी placements मैंने करवाए हैं, basically they all had experience because they were doing things on a regular basis. When I post something on the group and you say, sir, I am interested, तो इंटरेस्ट से कुछ होने वाला है नहीं. यू हैव टू प्रूव व्हाई आर यू इंटरेस्टेड in those things. And as you know, we were also talking in the interviews yesterday. We need to talk about our skills, projects that we do on a regular basis. Okay. See, we are applying for a role जहाँ पे we want experience, and वो experience के लिए you have to work, or else and you have to work almost every day, तो ही इट विल काउंट एज एन एक्सपीरियंस. क्योंकि ऑफिस ऐसा नहीं होता कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, 4 दिन के बाद करता हूँ सर, एक हफ्ते के बाद करता हूँ, मैं बिजी था. एंड दोज ऑल थिंग्स विल नॉट हेल्प फॉर रोल्स. ओके, जो प्लेस हुए हैं, इट वॉज एन 100% रिकॉर्ड. अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने रोज वो काम कर रहा है वो प्लेस नहीं हुआ. 6 मंथ्स इज अ बिग टाइम. वहां पे यू कैन 6 मंथ, 3 महीने में सब लोग हो चुके हैं. तो इज द फर्स्ट सेकेंड टास्क फॉर जो हैव जॉइन न्यू. वो वेबिनार का है, ऑटो वेबिनार में ऑलरेडी इट्स द वीडियोस आर ऑलरेडी देयर. यू जस्ट हैव टू वॉच एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. वो पूरा एक्सेल फाइल भी है and you can actually start preparing. So Sejal, would you start with the news? Yes, Sejal, sir. auto Sir, वाला, which one? auto वाला. Okay. Okay. So, good morning, everyone. Today, the news was found about the automobile. The auto firm price was flawed because of the poor inventory. The many firms are giving a discount on a brand like Renault, Nissan, Jeeps, Sentra, Skoda. They are offering minimum discount of 1 lakh. The also a stock like a Tabor, Kaigar, and Cossack. This is because of a low demand and a unsold category. Also, there was a poor, bad production planning and in a manufacturing. Mm. Many brands like Hyundai, Maruti, and Tata saw a fall in passenger vehicle sales. Uh, Hyundai's fall by 6%. Uh, this So about 61 units, 61,000 of unit. Maruti Suzuki fall by 5%. About 171,000 units. Tata Motor fall by 5%. This is because of hesitation about the consumer and excess inventories. This will also create a disruption in supply chain. And nowadays we are seeing the news about the magnet import. This will also affect the automobile sectors. Hello? Okay, okay, Yes. fine.
Okay, guys, anyone want to add something on this? So, guys, while I was reading this news, I came across companies like Skoda, Nissan. These are facing problems. Even Mahindra's name was come up that they are offering the heavy discounts of the unsold stock from 2024. So, guys, we are already 7 months into 2025 and 24 के stocks अभी तक बिके नहीं गए हैं. So that's a concerning sign for the passenger vehicle segment. Yesterday, Maruti was also down to 2.5%. Because of this news, and it is expected that it will fall by 6 to 10%. Obviously, the results will come out today, so you have to have a close watch. It impacts your stock market, the stock price as well. So every month ना जैसे हम मॉडल्स बनाते हैं तो every month we have to update our models की depending on the vehicles that are sold. Volkswagen, हाँ जा Honda is also offering a 4 lakh rupees discount on his iconic, वो तो ठीक है, वो महंगी गाड़ी है वो, but discounts, 5 to 6% discounts are the companies are giving on their cars, and that is a concerning sign. ये पहले भी आया था कि passenger vehicle segment will not grow in the year because of low demand. Probably H2 में it is expected कि थोड़ा बहुत demand आए. H2 is half year ना, after 6 months, सितंबर के बाद, बिकॉज फेस्टिव आएगा एंड वो जो टैक्स बेनिफिट का जो टैक्स बेनिफिट है वो किक इन हो जाएगा. एक्सपेक्टेड है ऐसा, बट वी हैव टू टेक अ क्लोज वॉक कि ऐसा हो रहा है क्या. लोग, क्योंकि जो टैक्स बच रहा है, पैसे बच रहे हैं वहां पे, वो लोग गाड़ियों पे खर्चा कर रहे हैं या और किधर खर्चा कर रहे हैं. सी पीपल डिस्पोजल इनकम विल इंक्रीज, दैट्स फॉर श्योर. एंड वो H2 से दिखेगा क्योंकि हमारा TDS भी तब से कटना होता है. सो प्रोबेबली थिंग्स टू कीप इन माइंड. ओके, Umesh, what is your news about? Umesh, can you read your news? Umesh. Okay, Chan, can you start with the news? Chan? Yes, sir, I'm there. Just a minute. Yeah, so I have news about Nykaa, which was having a growth of around 30% when it was in the 2, 3 years ago, and now it has come down. So it is planning to grow. The company still thinks that it can grow with 20% in the beauty and personal care. Now it is trying to breach into tier 2 and tier 3 cities by reaching over 500 stores by FY30. It currently operates in 237 stores. Now it has also been connecting with more than 28K influencers to increase its brand discovery. So it has 44 warehouses and 40 rapid hubs, which enables it for same day or the next day delivery. Now, the company thinks that fashion net sales are going to grow by 3 to 4 times in next 5 years, and the gross merchandise value is expected to rise from 17 billion to 60 billion by uh, FY30. The personal and beauty care sector in India is currently valued at 28 to 30 billion dollar, and it is to reach 50 to 55 billion by 2030 with expected growth of 10 to 12% CAGR. Yeah. Okay, so Chan, would you want to summarize it? कि वापस बोलो क्या क्या हुआ है, सिर्फ summarize करना है तो 1-2 points. Okay. So basically, Nykaa thinks that its revenue is going to grow by 20% in the beauty and personal care segment. Now, how it will do is it will breach into tier 2 and tier 3 cities by opening new physical stores and reaching over 500 stores by FY30. Uh, it is also connecting with more influencers. It currently has 28K influencers, but it has connected with 28K influencers to increase its brand presence. Yeah. Okay, fine. Nishta, anything on HUL?
Yes, sir. Today, basically, they have posted about their future plans a little bit. Just give me a second. Yeah. So, they're targeting 10% growth, but just 2% revenue growth happened in 2025. And the company is expecting a volume growth with a little bit of cool in inflation, rural growth, and favorable monetary policy that can increase their wallet. With the new Aspire strategy, they wish to focus on their core and emerging segments, which will align with the consumer preferences. HUL is also directing 40% of its ad spend towards digital media, which reflects their focus on digital marketing and consumer engagement with current trends. And with over 25% of the revenue of their company is coming from new products, and they have a strong innovation pipeline as well, which will help them to capture the emerging demand and reinforce the sustainability through their Compass framework. So what is the crux of this news? क्या समझना चाहिए हमको? क्रक्स बेसिकली यही है कि उन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि वो इतना टारगेट कर रहे हैं डिस्पाइट कि उनको रूरल और अर्बन में इतना ग्रोथ अभी इतना नहीं मिल रहा है, बट वो बोल रहे हैं कि फेवरेबल पॉलिसीज और मॉनसून एंड अदर थिंग्स की वजह से उनको ये हेल्प होगी, और उन्होंने अपनी की स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत चेंज करी है, जिसमें से उन्होंने बोला है कि हाँ वो अपना 40% अब जो रेवेन्यू जो एड स्पेंड होगा वो डिजिटल मीडिया की तरफ करेंगे, एंड दैट्स इट। तो डेटा इससे पॉइंट नहीं बोला कुछ तुमने? डेटा पॉइंट नहीं बोला? सर कंपनी ने अपना पोस्ट किया था 2% रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ, और उनका जो पैट था वो 5% तक चला गया था, विच इज अप टू 106 बिलियन इन 2025, अगर मैं डेटा अच्छा, पॉइंट की बात कर रही हूँ तो। ये क्या था? द कंपनी is also laying special emphasis on innovation with 25% of its 60,000 turnover coming from its products that did not exist a decade ago. अच्छा, okay. New हाँ, product. वो मैंने ऐड नहीं किया था इसमें, मतलब बोल जस्ट हैविंग द कॉन्वर्सेशन में मैंने ऐड नहीं किया था, वो मैंने न्यूज़लेटर में ही ऐड किया था, इसलिए Okay, नंबर वाइज नहीं ऐड किया था। okay. बेसिकली वो लोग सर यही बोलना चाह रहे हैं कि वो 2026 की ग्रोथ जो ले रहे हैं वो इम्प्रूविंग मैक्रोस और स्ट्रैटेजिक डिजिटल पुश की वजह से कहीं ना कहीं उनको हेल्प होगा बेसिकली। So again the focus, और yeah. So again the focus on digital push. अच्छा, ये why was I linking the Nykaa news with the HUL news? क्योंकि as Nykaa has said that the beauty and personal care in India is valued at 28 billion and to reach 25 billion with a growth rate of 10 to 12%. तो ये 10% HUL ने भी यही बोला है growth. They will grow by 10%. So probably beauty and personal care is the highest segmental revenue, 37%. So probably this will you know good. मतलब HUL looks good for if the competition doesn't intensify. Industry is growing 10 to 12%, तो probably HUL भी उतना परसेंट ग्रो होना चाहिए. If it's not growing, then we have to take a close watch कि वो सेगमेंट में क्या हो रहा है. तब जो रिजल्ट आएंगे तो 10% से तो ग्रो हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट. पर सर इनका ना अभी भी प्रीमियम फोकस कम है, मतलब जितना मैंने देखा है कि एचयूएल अभी भी ना प्रीमियम फोकस में अभी भी कम है, एंड पीपल जो अभी ट्रेंड आ रहा है नहीं, दे आर फोकस्ड इनटू प्रीमियम सेगमेंट। सो जब मैं इसका मतलब कि रिसर्च कर रहा था एचयूएल का, सो उनका ब्यूटी एंड वेलबींग से इस टाइम पे 21% आता है, और पर्सनल केयर से 15% आता है, और उसके बट अंदर अगर ही आप अगर हाँ, बट अगर आप मॉल में जाते हो तो आप कितने लोग एचयूएल के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, दैट इज द नहीं, थिंग या ना। अगर मैं जाती हूँ तो शेल्फ पे मुझे एचयूएल के प्रोडक्ट्स नहीं दिखते हैं इतने इनका मेजरली। अगर जाएंगे तो वो ज्यादा और प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, तो यस यस, इस ये वजह इसके से अंदर अगर आप देखेंगे मतलब कि उनके जो ये वाले सेगमेंट्स है ना, मतलब जैसे अगर अगर आप ट्रेसमे के इसमें देखेंगे तो उनका वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है, और उसके अलावा उन लोग अभी एक और चीज में आ रहे हैं, वो नोवोलॉजी करके स्किन केयर है उसके अंदर आ रहे हैं, सिंपल करके एक है वो भी इन लोग का प्रीमियम सेगमेंट में ही आता है। सिंपल और मिलने में नहीं आता, सिंपल का कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम है, वो ओके, बहुत रीजनेबल में आता इन लोग ने उसको वो लोग ने सुपर प्रीमियम में, हाँ.
Compared to HUL, प्रीमियम है, not in the इन industry द segment. इंडस्ट्री सेगमेंट, ओके। इंडस्ट्री सेगमेंट में नहीं है ये। हाँ, इंडस्ट्री ओके, सेगमेंट में नहीं है, हाँ। और फिर उसके बाद में लव ब्यूटी एंड प्लैनेट ये भी करके उन लोगों ने कुछ निकाला है उनके प्रीमियम सेगमेंट में। निकाले, अब बट वो स्टिल अभी भी मतलब अगर मैं यही कॉस्ट करता है 1200 1500, बट माइट बी प्रीमियम सेगमेंट इन दिस इज मच मोर। इसका व्हेन द अभी तुम ये डिस्कस कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि प्रीमियम सेगमेंट जो लग्जरी सेगमेंट तुम बात कर रहे हो कितना बड़ा सेगमेंट है? तो कितना बढ़ा सकता है? आउट ऑफ दिस 28 बिलियन लग्जरी कितने हम्म। से आता है, पता है? सर आई नीड टू लुक ऑन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, आई हैव टू तो गिव इफ यू आर फॉलोइंग HUL एंड तुमको ये नहीं पता ब्यूटी सेगमेंट में कि कितना बड़ा आता है, तो अभी क्यों हम तो क्यों क्यों ये सब बातें नहीं करनी होती है एक एनालिस्ट के सामने या एक सीनियर के सामने? इज बिकॉज अगर तुम्हारे पास डेटा पॉइंट नहीं है बताने को कि वो प्रीमियम में आ रहा है या लग्जरी में आ रहा है, तो फिर तुम क्या बेसिस पे आर्ग्यू कर रहे हो? ठीक है। बिकॉज I'll take व्हाट it. इज नहीं क्या था, मतलब मेरा क्या पर्पस था ऑफ टेलिंग दैट HUL विल ग्रो इज बिकॉज हम जो पढ़ रहे हैं अब तक कि वहां हम्म। से रूरल में ग्रोथ आ रहा है, करेक्ट? अर्बन इज हम्म। नॉट ग्रोइंग, रूरल इज ग्रोइंग। तो या रूरल में ऑब्वियसली HUL के प्रोडक्ट्स ही चलते हैं, कंपैरेटिवली हाँ। लग्जरी सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स नहीं चलते। लग्जरी या सेगमेंट सिर्फ चलता है इंडिया, मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटी में ऑब्वियसली है। शेल्फ पे तुमको वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज वो हम्म। वहाँ पे HUL मार्केट ही नहीं कर रहा। अभी अभी आ रहा है, दे आर कमिंग अप हम्म। टू स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट, एंड प्रोबेबली वो डिजिटल वो उससे ही बेचने वाले हैं, वो मॉल में नहीं करने वाले। तो ये भी या एक चीज है जो पता होनी चाहिए तुमको कि वो नाइक ठीक है। इसके तुमको ऑनलाइन ही मिलेंगे HUL के प्रोडक्ट, इट विल नॉट बी शोन ऑन द शेल्फ। ठीक है। हाँ, तो ये एक है क्योंकि HUL इज नॉट अ ना डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है ना वो हम्म। कंपनी, दे सेल या थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स। तो उसके ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट तुमको कभी भी शेल्फ पे नहीं दिखेंगे। सर इवन ट्रेडिशनल सेल्फ पे तो एंड देखे हैं सर मैंने, बट दैट इज द रीजन व्हाई आप इनका मतलब कि मैं एनुअल रिपोर्ट देख रहा था HUL का, तो उसके अंदर अगर इनका वो बता रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या है हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने का, तो इनका रूरल एरिया में ही इन लोग सेल कर रहे हैं इस टाइम पे तो। ऑब्वियसली और ऑब्वियसली वही इसके करेंगे, हाँ। और इसके अंदर इन लोग ने वो भी किया है कि जो वर्नाक्युलर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जैसे जो हम्म। वो उन लोग को मतलब अभी जैसे कि जो मेट्रोज में जो इन्फ्लुएंसर्स बहुत फेमस है बट रूरल में नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग देम सम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट। सो उन लोग ने वर्नाक्युलर इन्फ्लुएंसर्स को स्टार्ट कर दिया है कि मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र के कोई स्पेसिफिक एरिया में कोई हम्म। इन्फ्लुएंसर फेमस है तो उनको दे दो वहाँ का मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट, ओके काइंड ओके। ऑफ वैसे स्ट्रैटेजी से इन लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिकॉज वी हम पढ़ रहे हैं ना कि रूरल में ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब हाँ, कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं। तो निश्चित यस। अगर तुम प्रीमियम की बात करते हो या सुपर लग्जरी, तो तुमको पता होना चाहिए 28 बिलियन में सब लग्जरी कितना आता है। एंड वो डेटा नहीं मिलेगा इतना, आई थिंक हमने एक बार किया था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो डेटा अवेलेबल है क्या, ये सर ये सर नायका मेरे पास वाले पे डेटा है ही। सर। क्या हुआ? सर ऑनलाइन बीट इन पर्सनल केयर मार्केट is expected to grow to 95,000 crores by 2028, sir, with CAGR of 24%. लग्जरी मार्केट? हाँ 95,000 crores बनने वाला है 2028 तक। उसका CAGR जो ऑनलाइन बीट इन पर्सनल केयर है वो 24% है, वेरएस ऑफलाइन CAGR है 10%। और इसका 25-30% मार्केट शेयर नाइका कंट्रोल करता है, जो ऑनलाइन ब्यूटी केयर है। अच्छा, तो अगर ये ब्यूटी अगर ये है आज का वैल्यू, तो व्हाट इज द परसेंटेज? तूने बताया ना 28 बिलियन, नहीं सॉरी कितना, 95? 95,000 crores है सर, बाई 95,000 2028। if I divide by 2028 तक बन जाएगा। 90, sorry, 94% का 95,000 CAGR crores, था। 95,000 crores will be like divide by, if we do two, तो 950 बिलियन का मार्केट है, करेक्ट? 950 बिलियन इंडियन रुपीस, एंड इफ यू डिवाइड बाय $85, तो क्या इज इट 11 बिलियन का मार्केट है? 10 डिवाइड बाय 30, ये 30% इसका। ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट है सर, ये हाँ, ये ऑनलाइन पर्सनल ऑफलाइन नहीं है केयर भी सर, आया सिर्फ इसमें, ऑनलाइन। हाँ पर्सनल केयर भी आया इसमें, हाँ इसमें सिर्फ ब्यूटी है, हाँ। ये ऑफलाइन मार्केट है, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा था। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, इसमें दो चीजें है गाइस, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी है, दो अलग। HUL का दो अलग है, HUL का ब्यूटी अलग आता है, पर्सनल केयर अलग आता है। तो मेक राइट। श्योर कि वो 30 के ऊपर जाता है, 37 तो सिर्फ उसका ब्यूटी से आता है, और पर्सनल के अलग है उसका। उनका जो पर्सनल, एक सेकंड में वो परसेंटेज ही बोल देता हूँ प्रॉपर। जो इनका ब्यूटी एंड वेलबींग से आता है वो हम्म। इस टाइम पे 21% है, ओके, और जो पर्सनल केयर है वो 15% है। मतलब ऑलमोस्ट 37% हो गया। ऑलमोस्ट 37-36%, यस। 37% is as a revenue which will expected to grow by 10%. हम्म। अभी पर्सनल केयर नहीं होगा क्योंकि पर्सनल केयर में HUL बहुत बड़ा है,
ऑलरेडी यस, बिग ब्रांड, तो उसमें तो नहीं होगा, बट प्रोबेबली ब्यूटी में तो होना चाहिए। इनका ब्यूटी में एक और एक नेक्सस करके कि क्या, तो एक मेरे समझ से उन लोगों ने ब्रांड अक्वायर किया है, न्यूयॉर्क का है कोई ब्रांड, वो मैंने आई थिंक सो मेंशन इसमें नहीं किया है, मतलब अपने अच्छा, पीपीटी में, बट उन्होंने उसका लिया है, वो बहुत प्रीमियम सेगमेंट में आता है, मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा था। एक सेकंड मैं देखता हूँ। नेक्सस। सेजल, तुमको कुछ आया क्या नेक्सस का कुछ, सेजल? सर अब तक तो ये नाम पहली बार सुना मैंने। अच्छा, इन लोगों ने अभी वो मतलब वो सब जो न्यूयॉर्क में ये बहुत यूज होता है ऐसा लिखा था उसमें, अच्छा, नेक्सिस के प्रोडक्ट्स, और ये सुपर प्रीमियम सेगमेंट में ही आता है उनके। ओके, मैं देखता हूँ सर, इसका कुछ रहेगा तो मैं बताता हूँ आपको। ओके। और ये नायका का जो ये न्यूज़ है ना, इसके ऊपर ये आप देखेंगे तो उस दिन मैंने 27 को कि कौन से डेट को आपको भेजा था, उसमें एक न्यूज़ भेजा था नायका का, यही वाला न्यूज़ था वो। आ, उसके अंदर और भी अच्छे डेटा पॉइंट्स थे कि वो कितने से ग्रो हुआ है और क्या ग्रो होने वाला है। और हाँ, नायका का जिंदा करेगा, हाँ तुमने भेजा था, हम्म पर डाल के रखो। उनका 25%, 32% से मार्जिन का, मतलब ये अपना रेवेन्यू का ग्रोथ बता रहे हैं मैनेजमेंट 2030 तक। अच्छा न्यूज़ था वो, उसके अंदर अच्छे डेटा पॉइंट्स थे। सो वी आर नॉट फोकस ऑन नायका, वी आर फोकस ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, यस इंडस्ट्री यस। पे फोकस करेंगे तब हमको कोई क्लू आएगा कि क्या चल रहा है। तो नायका इज द बेस्ट, उसका जो डीआरएचपी भी अच्छा है, उसका भी रिसेंट ही, रिसेंट मतलब 2-3 साल पहले ही दो आया तीन होगा। साल हाँ, तो उसका टीआरएचपी में भी बहुत कुछ दिया है मार्केट के बारे में, ब्यूटी मार्केट, बिकॉज ऑल दिस ब्यूटी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, नायका इज देयर सोल सप्लायर ब्यूटी हाँ, प्रोडक्ट्स में, रादर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। बट यस। अभी कॉम्पिटिशन काफी आ रहा है, बट इट इज नॉट इन इंडिया, मतलब इट इज नॉट इन द मेट्रो सिटीज। सॉरी, मेट्रो सिटीज में कंपटीशन आ रहा है, रूरल में नहीं आ रहा है इतना कंपटीशन, सो वो एक है एक्सपेक्ट ऑफ टू लुक एट एचयूएल। बट ऑब्वियसली विदाउट ट्रैकिंग तुम वो इंटरव्यू में बातें नहीं कर सकते कि एचयूएल ग्रो होगा, कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। वो लास्ट 4 क्वार्टर्स की बात करेगा कि लास्ट 4 क्वार्टर में क्या हुआ है उसमें। अगर इतना, तो मेरा ऐसा होता है कि समटाइम्स आई वी एज एन एनालिस्ट टॉक फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब नेगेटिव को पकड़ के बोलते हैं कि अभी इसका नेगेटिव बहुत हो चुका है, अभी टाइम फॉर अ पॉजिटिव ग्रोथ। कि सर 4 क्वार्टर से गिरते आ रहे हैं, तो 4 क्वार्टर में क्या हुआ, ऐसा हुआ। हम जो बोल रहे हैं ना कि एचुअल ग्रो होगा, तो व्हाट बेसिस पे ग्रो होगा। ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में क्या हो रहा है, तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में दे हैव लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, उसमें लिखा भी था 25% ऑफ देयर पोर्टफोलियो, जो एक डेकेड के नए नए पोर्टफोलियो है, तो वो एक डेटा पॉइंट था कि सर उसके 25% पोर्टफोलियो नए नए हैं। तो प्रॉब्ली वो सेगमेंट में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है कंपैरेटिवली, जो बाकी 75% है वो। यस। टॉकिंग ऑन दैट पॉइंट, एचयूएल विल बी अ गुड बेट, ऐसा ऐसा भी ट्राई टू पिच अ स्टॉक। हम्म इसके लिए वो सब डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन एनी न्यूज़पेपर्स में ही आते हैं, तुमको किधर तुम पता ही नहीं पहले कि गूगल करना क्या। अभी मुझे क्या पता था कि ऐसा भी कुछ है कि 25% ऑफ इट्स टर्नओवर कम्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट दैट डिड नॉट एग्जिस्ट अ डेकेड अगो। Sir, actually, Nexus comes under the premium segment, बट क्या है वो? which is for the अच्छा, haircut products as well. ओके, ओके। चलिए, तुम्हारा और एक तुमने न्यूज़ बोला था वो, और एक क्या था तुम्हारा? Mhm. एक सेकंड, तुमने वो रेमंड रेमंड का, हाँ। Okay. Just a second. So the Raymond strategy was target to increase the market capitalization with 200 billion. This also the Raymond CAGR is grown by 15% from 150 billion in FY20. This was excluding a real estate business. Also, the Raymond Realty business expected to grow from 80 to 180, 120 billion. This will come if we combine both this, then the Raymond will be, the market capitalization will be expected to grow 200 billion. Also, this was driven by driven by lifestyle segment, real estate, and uh, engineering segment. Also, the Raymond expected to sustain the double-digit growth, which was driven by competency in crucial high-growth sectors such as airspace, defense, and automobile.
Also, they are focused on they are shifting the focus on ethnic wear, innerwear, and slipper wear. ओके सेजल, समराइज करो, या अगर तुमको तीन ही पॉइंट बोलने हैं तो क्या बोलोगे इसके बारे में? Sir, हम्म। Raymond इंक्रीज कर रहा है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना मार्केट विथ कैपिटलाइजेशन वो कॉम्पिटिशन। कैसे इंक्रीज करेगा सेजल? वो तो स्टॉक प्राइस होता है ना। हाँ सर। तो उसके लिए क्या कर रहा है वो? ओके, उसके लिए सर वो डिजिटलाइजेशन पे जाएंगे और उनका मेन फोकस रहेगा लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट बिजनेस एंड इंजीनियरिंग बिजनेस पे। ये हम्म। 3 सेगमेंट पे वो फोकस करेंगे तो उनका इंडस्ट्री में ग्रोथ रहेगा। तो क्या कर रही है तीन सेगमेंट में वो लोग? 3 सेगमेंट में पहले तो लाइफस्टाइल में वो लोग न्यू प्रोडक्ट ला रहे लाइक एथनिक वेयर, इनर वेयर एंड स्लीपर वेयर में हम्म। पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं। हम्म। एंड रियल एस्टेट में the real estate project with the 400 billion project pipeline. हम्म। This is with the no debt free, हम्म। करेक्ट। which was expected to grow. टू ग्रो। हम्म। Uh, हम्म। And also the in engineering segment, this was expected to sustain the double digit growth with driven by expanded competency in crucial high growth sectors such as airspace, defense, and automobile. बस इतना ही तो बोलना था ना, तो तुम्हारे पहले क्या बोल रहे थे तुम? इतना कुछ बोल रहे थे। Yes, yes. रेमंड का 2.0 स्ट्रेटेजी है, ये है वो है, लेकिन बोलना क्या चाहते हो तुम कि सर रेमंड इज ग्रोइंग इन द ऑल द थ्री वर्टिकल्स, दैट इज लाइफस्टाइल, रियलिटी एंड इंजीनियरिंग। तो क्या कर रहा है लाइफस्टाइल में? बराबर, लाइफस्टाइल में ही इज कमिंग अप विद एथनिक वेयर, इनर वेयर एंड न्यू स्लीपर वेयर, स्लीप वेयर। दे आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इट्स कोर Yes, sir. ब्रांड टेक्सटाइल एंड एक्सेलरिंग ग्रोथ इन अपैरल्स भी था, अपैरल्स एंड गारमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू ब्रांड्स अक्रॉस। तो ऐसा था कि दे आर स्ट्रेंथनिंग इन ब्रांडेड टेक्सटाइल एंड apparels and garmenting, and building new ethnic wear, inner wear and sleepwear, sorry। तो क्या कर रहा है? एथनिक में वो आ रहा है, इनर वेयर में आ रहा है, स्लीप वेयर। इनर वेयर में कौन है कंपटीशन उसको? पेज इंडस्ट्रीज, जो कि लिस्टेड है। Yes, sir. स्लीप वेयर में आई एम नॉट श्योर। एथनिक वेयर में मिंत्रा है, वो मिंत्रा नहीं, सॉरी, मान्यवर है, वेदांत फैशन। Um, और फिर इसमें क्या कर रहा है? रियल एस्टेट में दे आर कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट ऑफ 400 बिलियन, करेक्ट है? 400 बिलियन इन पाइपलाइन। एंड इसमें क्या कर रहा है तुम्हारे इंजीनियरिंग में? दे आर कमिंग अप विद हाई ग्रोथ सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस, डिफेंस एंड ऑटोमोटिव। यही तो बोलना था, तुम क्या बोल रहे हो फिर? कब सु, कब सीखोगे सेजल? खत्म होने आया तुम्हारा इंटर्नशिप अभी। ओके गाइस, एनीवन एल्स? नो न्यूज़ आज ज्यादा कुछ नहीं है न्यूज़पेपर में। सत्यजीत, एनीथिंग टू ऐड? नो सर, न्यूज़ ज़्यादा नहीं था, बस वही पूछना था सर, वो इंटरव्यू का वीडियो बना के दे सकते हैं बिफोर इंटरव्यू, लाइक क्लास हाँ 7 o'clock। बिफोर, हाँ वही, मेक अ वीडियो एंड सेंड सो दैट आई कैन सेंड टू विद्या मैम, एंड फिर विल हैव अ फीडबैक ऑन दैट। तो और सीवी भी भेजा तुम्हारा उसके साथ, ताकि ना रन मी थ्रू योर सीवी। तुम जो सीवी में बोल रहे हो और जो तुम इंटरव्यू दे, जो तुम बात कर रहे हो, वो सेम है या कुछ अलग बात कर रहे हो? ठीक है, श्योर श्योर, वो ओके भी है। थैंक सो गाइस, आप प्लीज सेंड अ वीडियो, एक ट्राई करो। अच्छा, अभी ना एक लड़के ने मुझे वीडियो भेजा, एंड आई टोल्ड हिम कि व्हेन यू सेंड अ वीडियो, सी यू आर सेंडिंग इट ऑन अ पब्लिक फोरम, ठीक है? वी आर डिस्कसिंग ऑन द पब्लिक फोरम। पब्लिक फोरम हो या कोई हो, आई एम ऑल्सो अननोन टू यू, राइट? तो व्हेन यू सेंड अ वीडियो, तुम्हारा वो अटायर, तुम्हारा आजू बाजू का सिनेरियो बहुत मैटर करता है। इट इज लाइक फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि क्योंकि एज अ फ्रेशर तुमको कुछ आता नहीं है, तो मुझे पता ही है कि तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ तो बकवास ही करने वाले हो उसमें। दिस इज अज्यूम। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एज एन प्रोफेसर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज एन इंटरव्यूअर बोल रहा हूँ कि इट इज अज्यूम कि तुमको कुछ आने वाला है नहीं। बट द इंटरव्यू इज ऑलवेज फॉर अ फ्रेशर, इज ऑलवेज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। इफ यू कैनॉट प्रेजेंट इन अ बेटर वे, और वो ना खुद ही करना होता है। बिकॉज ना, ये मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखा था। मेरे डैड ना हमेशा बाहर जाना नहीं होगा ना, फिर भी घर पे वो अच्छे कपड़े पहन के बैठने के।
तो मेरी मॉम ने कहा था कि तुमको इधर जाना नहीं है तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हो. But then I realized that he was into business, and when you are talking about client facing thing ना, वो तुम्हारे अंदर ही होना चाहिए कि whenever you send anything it should be मतलब proper edited या edit हो, या फिर भी background अच्छा होना चाहिए तुम्हारे, मे बी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए वीडियो का. अभी वो ऑब्वियसली इट इज नॉट, सबके पास ही वैसा कैमरास नहीं होगा, बट स्टिल आजू बाजू का है प्रोबेबली एक, मे बी वॉल के बाजू में जाके वीडियो करोगे, पीछे कुछ दिखना नहीं चाहिए. तो दिस आर ऑल थिंग्स, आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम अटायर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बहुत काम में आते हैं इंटरव्यूज में. छोटी 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 से बहुत होती है. फिर तुम कैसा बोलते हो उस पर ध्यान नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं मेरे फ्रेंड से भी बात करता ना, उसका पीछे ध्यान होता है कि ऋषा अरे तेरे पीछे वो क्या है, ये तेरे को बैकग्राउंड कहाँ से मिला, ऐसे ही मतलब वी आर टॉकिंग रैंडम, फिर भी वो बात ही चलती है. सो वे नजर जाती है सबकी. ठीक है, तुम्हारे बातों पे किसी की नजर नहीं जाने दो कि हम अज्यूम ही करेंगे तुमको कुछ आ नहीं रहा, तुम यहाँ पे बकवासी कर रहे हो. तो व्हाट विल फोकस ऑन. तुमने ना कभी देखा होगा ध्यान, अगर तुमने इंटरव्यूज दिए होंगे तो ना इंटरव्यूअर जब पूछा ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसका ध्यान ना सीवी पे होता है, तुम पे नहीं होता है. एग्री. ध्यान रखो, कभी वो कभी तुमसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है वो चीजों पे, क्योंकि उसको देखना होता है कि सीवी में तुम बोल रहे हो और जो बोल रहे हो वो राइट है कि नहीं. when you come in obviously he judges you based on, even when I used to take, कोई कैंडिडेट अंदर आता है तो मैं उसको जज करने का, उसने कपड़े कैसे पहने हैं और उसने ना वो आता कैसे है, उसका जेस्चर कैसे है. जैसे कल मैम ने बोला है ना कि हाउ आर यू पूछते तो सिर्फ फाइन मत बोलना, आगे उसको क्वेश्चन पूछना. दिस जस्ट अ गुड जेस्चर कि आर यू अ टीम प्लेयर, पता पता चला खुद को ही तुम समझते हो कि तुमको सब आता है. वो उसे डिलीट, क्या बोलते हैं उससे, वो इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव चेंज होता है. एंड ओके, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं भी जब बोलने का टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मेरा सीवी हमेशा हाथ में होने का. एंड देन मैं सिर्फ उसका सुनने का वो क्या बोल रहा है. तो मुझे पता है तुम कुछ और उसमें से कुछ गलत बोलेगे, तो फिर ऐसा है कि तुमने तो लिखा ही नहीं है. एंड देन आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सीवी, टेक्निकल राउंड्स होते हैं वो. तो ये ध्यान में रखना कि वेन एवर यू गो, तो योर सीवी एंड योर वीडियो शुड गो हैंड इन हैंड. एंड वो वीडियो भी भेजते हो तो ये याद रखना कि तुमने जो भेज रहे हो इट शुड बी ना बेटर वे. खाली फुकट अनशेव्ड है या फिर टी शर्ट पहना है, नहीं होता है ऐसा कि बिकसी वी आर टॉकिंग ऑन अ पब्लिक फोरम. ऐसे नहीं, तो 1 to 1 नहीं भेजो, 1 to 1 भी भेजो तभी भी क्यों करना है. तो वी फॉलो दिस अप्रोच. अभी ऐसा नहीं कि मैं मुंबई से हूँ इसके लिए ऐसा है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तुम ऑफिस में जाते हो, सी वेदर कोई तुमको बोले फॉर्मल्स पहन के आओ नहीं आओ, मैं हर दिन फॉर्मल्स पहन के जाने का. बस मुझे वो ऐसा था कि नहीं मैं जा रहा ना तो आई शुड बी प्रेजेंटेबल, क्योंकि ना ऑफिस में और 4 लोग होते हैं वो तुमको देखते हैं. दैट इज द मेजर रीजन आई डोंट लाइक आईटी पीपल. पता नहीं क्यों, क्योंकि वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, लाइक उनको कुछ है कि नहीं, शेव वेव नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट क्लाइंट फेसिंग रोल. उनको पता है बैक एंड रोल से तुम कितना कमा लोगे पैसा. when you change your attire, when you change your speaking skill, that time your salary increases. तुम भूल जाओ कि एक टाइम के बाद तुम्हारा सैलरी तुम्हारी डिग्री के वजह से बढ़ने वाला है. वो स्टार्टिंग ही होता है, तुमको 5-10 लाख मिल गया, उसके बाद जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो तुम्हारे स्पेसिफिक स्किल्स एंड तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे होता है. अभी आईटी वालों को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनका क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं होता. हम जब कोर फाइनेंस की बात करते हैं इट इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल. तो क्लाइंट फेसिंग रोल में यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. फिर तुम ऑफिस में भी क्यों ना हो. तुम यू डोंट बिलीव, मैं एक ऑफिस में था, वहां पे ना बैक एंड रोल था उनका, बट वो कंपनी फ्रंट ये था, क्लाइंट फेसिंग था, क्योंकि क्लाइंट्स ऑफिस में आने के. तो वो जो लड़के लोग बैठे थे ना बैक एंड में भी, उनको भी ना कंपलसरी टाई डाल के बैठने बोला था कि नहीं तुम भले फोन पे बात करते हो बट तुमको टाई डाल के बैठना है, फॉर्मल्स और टाई डाल के. तो हम ऐसे बोले तुम क्यों टाई डाल के, तुम तो कस्टमर से बात भी नहीं करते. तो नहीं, कस्टमर्स ऑफिस में आते हैं तो उनके सामने हम प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए. इसके लिए हमारे मैनेजमेंट में मैनेजर ने बोला है कि स्पेसिफिकली वो टाई पहन के बैठना है. तो ये अलग ही लेवल का था. मतलब ये मैंने सीखा व्हेन आई वाज न्यू टू द कॉर्पोरेशन कि अरे हाँ ऐसा भी होना चाहिए. भले इट डजंट मीन कि तुम बैक एंड पे हो तो कैसे भी आ जाए. तो मुझे वो आईटी वालों से बड़ा गुस्सा आता है कि बैठे ही ऐसे है टी शर्ट पहन के जीन्स पहन के. इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, बट आई डोंट फील दैट दे आर प्रेजेंटेबल. तो फिर जिंदगी भर तुम काम ही करते रहोगे, ऐसा है. ओके, बी प्रेजेंटेबल एंड probably try to send the video in that way. सी वो टीचिंग, वो जो बात करना है वो तो विदय मैम विल गिव यू एन फीडबैक कि कैसे बात करना है क्या करना है. पर एटलीस्ट भी प्रेजेंटेबल कि इंटरव्यू में जाए कोई बोले तो अरे चलो डिसेंट गाय आया है. सर वो जो आप बैकग्राउंड का बोल रहे थे,
तो वो एक बार जरा बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे घर रहता है तो उसके हाँ पीछे ऐसे मतलब कौन से जगह पे ऐसा कर सकते हैं कि मतलब क्या एक क्वालिटी होना चाहिए बैकग्राउंड का कि नहीं, वो बैकग्राउंड तो प्रॉपर। जल जाता है। ये मेरा जो है इट्स ओपन, मैंने जो रखा है ना बैकग्राउंड, इट्स हाँ प्रोबेबली ओपन। ऐसा है तो वो उसकी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो निकाल रहे हो अभी, जैसे तुम ये वीडियो निकाल रहे हो ना वन, अभी उसमें हाँ तो बैकग्राउंड नहीं होगा ना तुम्हारा। हाँ। अगर जूम पे निकल रहे हो ठीक है, तुम बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, बट अगर मोबाइल पे निकल रहे हो तो एक वॉल के पीछे हमेशा करना होता है कि पीछे को दिखना नहीं चाहिए तुम्हें। ओके ओके, मतलब क्लीन एक बस वॉल रहनी हाँ, चाहिए, एक कुछ वॉल और रहनी नहीं चाहिए रहने। हाँ व्हेन हाँ। यू आर गिविंग लाइक वन, ये जो इंटरव्यू होता है ना, एक परफेक्ट एक मिनट परफेक्ट। का ऐसा। ओके और अगर ओके। तुम इस पे कर रहे हो, जूम पे कर रहे हो, तो इनफ, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए बैकग्राउंड। हाँ, ये मतलब मेरे को यही पूछना था, जैसे आपने उस पे आरके एडवाइजरी लिखा है ना, हाँ, तो वो कैसे किया है आपने? वो ना वीडियो सेटिंग्स में जाके, एक्चुअली मेरा वो प्रीमियम प्लान है, इसके लिए मेरे को अलाउ किया उसने करने को। ओके ओके, अंडरस्टूड। बट तुम वरना ब्लर कर सकते हो, या फिर ना इसने किया था ना, अक्षिता, हाउ डिड यू डू? Yes, sir. वो तुमने बैकग्राउंड कैसे चेंज किया? वो बैकग्राउंड तो चेंज हो जाएगा सर, वो खाली वो जो हाँ। नीचे लिखा था ना वो मेरे को नहीं नहीं, वो पता कैसे चला। किया है मैंने, वो ना मैंने लोगो बनाया है आरके एडवाइजरी का, ओके मेरे पास था, और वो मैंने फिर वर्चुअल बैकग्राउंड में वो ऐड किया है। ओके ऐसा अंडरस्टूड किया है, अंडरस्टूड उसमें आता ना अंडरस्टूड। कि क्रिएट बैकग्राउंड, तो वर्चुअल हाँ बैकग्राउंड में ऐड किया है। अंडरस्टूड, वरना वो नॉर्मल तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वो, मतलब हाँ कि हाँ, फोटोज ऐड करके और फिर। फोटो शेयर करें, हाँ। या ठीक है चले। मैंने उसमें ऐड किया है वो, खास वो लोगो डाला है उसमें, एक है ऑप्शन कहाँ पे, तो जस्ट। आपका जैसे वो बैकग्राउंड रहता है सर, जैसे भी आपका जो बैकग्राउंड है हाँ और फिर जैसे आप बैठते हो तो आपका ऐसा लगता है ना, मतलब कि वो प्रॉपर ऑफिस है जब अब वो हम मैंने लोग। ढूंढा वैसे, वो ना बहुत हाँ ढूंढा मैंने, बिकॉज जब मैं भी, मेरे को ये अज्यूम, क्योंकि मैं जब बात करने का ना तो पहले मैं ब्लड रखने का, तो देन आई हाँ रियलाइज कि ना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को देखता हूँ, लेट्स से नाउ वी आर व्हेन आई एम टॉकिंग विद अभी कैसा होता है व्हेन आई डू अ जूम मीटिंग, तो पहले ब्लड रखने का मैं, स्टूडेंट्स के सामने इट्स ओके कि चलो तुम थोड़ी मुझे कुछ बोलोगे कि सर आप खराब लग रहे हो, हम्म बट व्हेन मैं जब देखने लग गया ना स्टूडेंट्स को, मैं लगा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, ये ब्लड कैसे लग रहा है एकदम। तो आई हम्म थॉट कि जस्ट फाइंड सम वीडियो बैकग्राउंड्स, देखते हैं कैसा है, एंड यू कैन डाउनलोड इट, एक वीडियो होता है, तुम ना कैनवा पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने कैनवा से किया था एक डाउनलोड, अच्छा कैनवा के फ्री में है अंडरस्टूड। ना, वो तुम वहां से डालो कि एक वीडियो बैकग्राउंड फॉर जूम, वो आता है, एंड यू कैन ऐड इट इन योर वर्चुअल बैकग्राउंड यहाँ ओके पे। अंडरस्टूड, मेरे माय पास माय कैनवा का प्रीमियम है तो मैं कर हाँ हाँ, लूँगा। तो मैंने कैनवा से लिया था, करेक्ट, मुझे अभी याद आया, कैनवा से मैंने लिया था। कि परफेक्ट ओके। पहले मैं करने का तो एकदम वो बीच है कुछ पीछे, फिर ना वो टावर है, ऐसा कुछ आने का, हम्म I was not liking it. And when I was talking with some, persons who are elderly, या थोड़े बड़े लोग हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता ना, प्रोफेशनल राइट। लुक्स गुड। भले मैं कुछ भी बोलूँ इंटरव्यू में, कुछ भी बकवास करूँ, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता है, मतलब यस। हमने भी कितने बार ऐसा किया था कि ना, मुझे ना 5 लोग मिले, पांचों के पांचों बकवास थे, ठीक है, किसी को भी फाइनेंस हाँ करने का, अभी उसमें से मैं किसको चूज करूंगा? ओके अंडरस्टूड। द वन हु राइट। वाज प्रेजेंटेबल, हम्म कि मुझे पता है इक्विटी रिसर्च इज नॉट दैट इजी, ऐसे ही लोग मिलेंगे, हम्म बट अभी उसमें से भी कौन अच्छे से बात कर रहा है, वो और प्रेजेंटेबल है, फिर कल हम्म क्लाइंट से बात हुई तो ना, कम से कम बात तो कर सकता है ना, सीखा तो मैं इसको दे दूंगा चलो, जैसे आज है, जैसे मैं तुमको सिखा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ऑटोमोबाइल तो मैं तुमको सिखा दिया, अभी प्रेजेंटेशन करना है, मैं तुमको कैसे सिखाऊं? ये मेरा काम तो नहीं है ना, सही बात है, यस सर राइट। एज अ फाइनेंस ट्यूटर मेरा काम नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव हायर्ड विद्या मैम की, चलो तुम बताओ उनको कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं यही बताता रहूँ तो फाइनेंस दूर रह जाएगा, तो बोथ बोथ इज इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है हम्म सर। मिल सर, ये तो कैनवा पे एकदम डिट्टो जैसा आपके पास है वैसा मिल गया मेरे को। हाँ है ना, हाँ, तो मैं उधर से ही लिया, फिर मुझे और याद इसके आया। अंदर एडिट भी कर सकते हैं, वो टेम्पलेट के अंदर ही है नाम लिखने का ऑप्शन। हाँ हाँ, तो मैं वैसे ही किया था, करेक्ट। ओके अंडरस्टूड। मैं देखता हूँ और कोई मिलता है कि नहीं, वरना फिर यही हाँ वाला इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच सर। ओके गाइस, ओके, सी यू टुमारो गाइस, सॉरी, सी यू इन द इवनिंग, बाय यस यस बाय। बाय, Thank you. थैंक यू।